आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभागार में उपस्थित कुछ गुरुजन हैं, कुछ हमारे सहयोगी रहे हैं वो भी उपस्थित हैं, कुछ हमारे छात्र हैं, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आप यहाँ आए हैं इस सभागार में। दूसरी बात, आज जो दुखद समाचार मिला उससे मैं काफ़ी आहत और द्रवित हूँ, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी लंबे समय तक रजनीश जी रहे, काम किया, हम लोगों ने बहुत साथ में। उनके न रहने से मुझे काफ़ी अंदर से दुखी महसूस कर रहा हूँ। I'm very very thankful for giving this wonderful speech. Sir, my question to you is that to understand the social differences of any place that has been excavated, we usually trace either burials or the objects utilized by the people. So at the excavation of Sinoli, you found all those things, burials too and the objects too. So what do you want to say about the social differences? Whether there was a society that was, that there were equality there, or where there existed any kind of, differences among the people? Thank you, sir. Very good question. Really, it's actually, if you see the variety of burial, variety of process, some of the burial have been very less burial roots in the burial pit. Some of the burial having larger pit, also lot of burial roots like chariot, shield, etc. And then quantity of pots also varied. So that shows some hierarchy in the society, or not only hierarchy, but maybe the system of one craftsmanship, or the warrior class, or the ruling class, etc. So that very clearly you can see in the burial system at Sinoli and other places also, in Harappan context or in other Chalcolithic context also. So yes, hierarchy and then social changes or the differences of the society people. Some maybe the craftsman society, maybe the warrior society, maybe the other system prevailing at that time. Because if you see the chariot means charioteer, chariot makers, the craftsman, horse breeder or horse को maintain करने के लिए. So there is several thing linked with one object. If you see the coffin means कि there is craftsmanship, inlay person is different, or maybe the priest. If you see the chamber means the priest and last rituals, having some people doing that. So entire system, you try to understand the entire burial system and process that reflects the society and system of society also. Thank you. Good morning, sir. Myself, Sir Janendra from DAV Public School, PSCB College, Patna. I had, sir, two questions, sir. First of all, sir, that how did you come to the conclusion that they were the chariots itself? As there were the evidences that in the early Harappan culture, sir, that there were terracotta bullock carts were there. So it wouldn't be uncommon in the late Harappan culture to find such bullock carts there, first of all. And secondly, sir, there is a question, sir, that you mentioned about two places, sir. First one was that, sir, Hulas and Alamgir Port, sir. That are to be re-excavated, sir, according to you, sir. So, sir, what are the findings suggesting to you, sir, which are yet to be, sir, explored, sir, there?
वस्तुतः कोई भी पुरातत्वविद एक बहुत सीमित क्षेत्र में उत्खनन कार्य कर पाता है और जो भी उसका इंटरप्रिटेशन होता है वहां से मिले हुए सामग्रियों के आधार पे। डॉक्टर मंजुल ने भी जो अभी उत्खनन किया है वो बड़ा लिमिटेड क्षेत्र है और उसके आधार पर अगर ढेर सारी क्वेश्चन किया जाए तो उनके पास भी उसका जवाब नहीं होगा। वो बाकी कहिए कि उस क्षेत्र के आधार पर नहीं, अपने अध्ययन के आधार पर कर सकेंगे। क्या कि अभी बहुत लिमिटेड ट्रेंचेज आप वो बता भी रहे थे, बहुत लिमिटेड ट्रेंचेज में उत्खनन हुआ है और उसके आधार पर ही जो भी इंटरप्रिटेशन मिला है, जो मटेरियल मिला है, मैं उनको स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा। जो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अगर उन सामग्रियों को आप देखिएगा आंख से तो आपको स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि वो सचमुच कॉफिन है या रथ का ये सब कुछ है। तो एक्सरे के कारण ही ये संभव हुआ जो उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाया कि वो उनको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं और वो आपके सामने इन बातों को रख पा रहे हैं। क्या मैं सब शायद एक बात का जवाब है कि महिलाएं युद्ध में जाती थी अथवा नहीं, महाभारत में तो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन रामायण में तो ये स्पष्ट है कि कैकेयी दशरथ के साथ युद्ध में गई थी और वसुधा सिंगल एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल है कि वो दशरथ के साथ युद्ध में गई थी और उनको जो 2 वरदान मिला था वो वसुधा उसके कारण नहीं मिला था। इसके मतलब रियल होगा, लेकिन महिलाएं चाहती होंगी सभी। अच्छा, बाद में भी अगर देखा जाए तो लक्ष्मीबाई या और कुछ जो वो भी बहुत ज्यादा नहीं संख्या में, लेकिन हाँ महिलाएं ऐसा नहीं था। स्थितियों के परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहाँ महिलाएं भी युद्ध करने के लिए मजबूर होती हैं और वो लगता है हर काल चलता रहा होगा। मैं डॉक्टर मंजुल को धन्यवाद देते हुए अब अध्यक्ष की अनुमति से अपने समय को भी देखते हुए अपने द्वितीय वक्ता डॉक्टर गौतमी भट्टाचार्य को आमंत्रित करूंगा, जो केसरिया के स्तूप का जो उन्होंने अपने पिछले पदस्थापन काल में उत्खनन कराया था, उसके पहले डॉक्टर मोहम्मद ने उसका उत्खनन कराया था, लेकिन उन्होंने उस काल में पुनः उत्खनन करा के कुछ नई चीजें प्रकाश में लाई। आज तक उसके बारे में मैं कभी बोल नहीं पाई थी, वो मौका नहीं मिला था, यहाँ के लोगों को भी नहीं मिला था मौका। तो आज वापस आई हूँ तो सोचा कि केसरिया से ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा बताने के लिए, तो उसी का थोड़ा सा संक्षिप्त मैं आपको बताना चाहूँगी। थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो केसरिया का है, ये बुद्ध के टाइम में जहाँ केसरिया अवस्थित है वो एक बॉर्डर एरिया होता था, जो कल आपके जो प्ले दिखाया था उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है कि जो लिच्छवियों का गढ़ था वहाँ और जो कोसल राज्य था मल्लों का, उसके बीच की ये बॉर्डर माना जाता था। और बाकी जो रेफरेंसेस हमको केसरिया के बारे में मिलता है, एक अलारा कालम का हमको मिलता है कि वो बहुत प्रसिद्ध फिलोसोफर थे बुद्ध के समय के ही। तो कहा जाता है कि वो केसरिया से ही बिलोंग करते थे, जो वो उस समय जो रहा होगा आज का केसरिया जहाँ पे अवस्थित है। और मध्यम निकाय में हमको एक नाम मिलता है केसपुत्र निगम। अब ये केसरिया को ही बोला गया है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, पर नाम प्लेस नेम हमेशा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी रहती है। तो उसी हो सकता है कि वो जो आज का प्रेजेंट केसरिया है उसी को बोला गया हो, केसपुत्र निगम। पहला जैसे हम जानते हैं कि बिहार की आर्कियोलॉजी जब भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक नाम बहुत प्रोमिनेंटली मिलता है, वो है अलेक्जेंडर कनिंघम का। किसी भी साइट का जब हम हिस्टोग्राफी देखते हैं, एक साइट की कैसे डिस्कवरी हुई, उसमें क्या क्या काम मिला, तो सबसे पहला नाम हमको कनिंघम का मिलता है। तो यहाँ पे भी कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है कि केसरिया के बारे में भी जो पहला हमको हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है वो हमको कनिंघम का मिलता है। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि कनिंघम ने हर जगह खुदाई किया था, पर केसरिया स्तूप को उसने नहीं खोदा। उसके न खोदने का एक कारण ये था कि वो खुद ही बताते हैं कि जब वो केसरिया आए थे उससे 40 साल पहले एक काशीनाथ बाबू हुआ करते थे, जिन्होंने कर्नल साहब के कहने पे वहाँ पे खुदाई किया था। वो खुदाई में उसके बारे में, ये कर्नल साहब थे लॉर्ड कर्नल मैकेंजी। ये भी एक बड़े फेमस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने काफ़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे एंटिक्वेरियन रिमेन्स के हिसाब से काम किया था। तो शायद उन्हीं के आदेश पे काशीनाथ बाबू ने केसरिया में खोदा
उस समय आप ये समझिए कि हमेशा जब भी स्तूप मिलता था ना लोगों का, जैसे कल आपने देखा है कि अस्थि कलश की खोज मेन रहता था, तो केसरिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो उनको लगा कि इतना बड़ा जब स्तूप बना होगा तो ज़रूर उसमें एक अस्थि कलश मुझे मिलने की संभावना है। तो कर्नल साहब के कहने पे काशीनाथ बाबू ने एकदम सेंटर में ही हम लोग सोचते हैं कि कलश रखा जाता है, तो उन्होंने सेंटर में तक खुदाई किया, पर उनको कुछ अस्थि कलश मिला नहीं। तो और इसके बारे में कुछ और लिखा पढ़ा भी नहीं गया था। तो कनिंघम को लगा कि जब उनको कुछ मिला नहीं तो इसमें अस्थि कलश होने की संभावना नहीं है, और शायद इसी धारणा से वो थोड़े हताश हो गए कि जब मुझे मिलना ही नहीं है तो मैं वहाँ पे क्यों खुदाई करूँ। तो इसके चलते उन्होंने केसरिया की खुदाई नहीं की। पर वो अपने रिपोर्ट्स में बताते हैं, ये उनका पहला ही रिपोर्ट था, कनिंघम का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो रिपोर्ट्स है उसमें पहला रिपोर्ट जो वॉल्यूम है उसी में हमको केसरिया के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसमें वो उस स्थान से जुड़ी हुई किंवदंतियाँ हैं उसके बारे में वो जिक्र करते हैं, जिसमें एक जो बहुत प्रोमिनेंट नाम मिलता है वो राजा बेन का मिलता है। राजा बेन को कहा जाता था कि वो वहाँ के चक्रवर्ती राजा थे। तो राजा बेन जो वो आपका केसरिया स्तूप है उसको राजा बेन का गढ़ कहा जाता था, और उसके पीछे ही एक पौंड था जिसको राजा बेन का दीघा कहा जाता था। और चक्रवर्ती राजा से हमको एक और कनिंघम ही बताते हैं, ये इसमें अब वो ह्यून सांग को ले आते हैं। ह्यून सांग बताता है कि जब वो वज्जी या वैशाली में घूम रहे थे तब उनको बताया गया था कि वज्जी वैशाली से 30 या 34 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में वो लोग ली डिस्टेंस मेजर करते थे। ली आज हम लोग जैसे किलोमीटर और मीटर यूज़ करते हैं, चाइनीज़ जो ह्यून सांग का रेफरेंस होता है उसमें डिस्टेंस के लिए ली वर्ड यूज़ होता है। तो वहाँ वो बताते हैं कि 34 ली दूर उत्तर पश्चिम में एक स्तूप अवस्थित है, और वो स्तूप एक चक्रवर्ती राजा का है। इसी से जुड़ता हुआ, ये शायद केसरिया का ही स्तूप रहा होगा, इसी से जुड़ता हुआ एक और जो बुद्ध का रेफरेंस मिलता है कि बुद्ध ने शायद कहा था कि मैं अपने पूर्व जन्म में, आपको पता है जो जातक कथाएं होती है वो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं होती है, जिसमें उन्होंने मनुष्य के रूप में भी जन्म लिया है, पशु पक्षी के रूप में भी जन्म लिया है। तो उसी एक पूर्व जन्म में बुद्ध कहते हैं कि मैं उस देश का राजा हुआ करता था, उस देश का चक्रवर्ती राजा होता था। तो हमको एक और रेफरेंस मिल जाता है कि बुद्ध अपने उस टाइम पे तो नहीं, पर एक प्रीवियस लाइफ में वो उस क्षेत्र से या उस जगह से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट हमको अब थोड़ा सा हम बुद्ध के और करीब आ जाते हैं। इसमें कनिंघम ही हमको बताते हैं, फाहियान का रेफरेंस अब वो देते हैं। फाहियान का रेफरेंस देते हुए बताते हैं, यहाँ पे फिर हम कल की अस्थि कलश की उस पर पहुँच जाते हैं। जब वैशाली से वो निकलते हैं, तो वैशाली से निकलने से पहले वो बताते हैं वहाँ पे लिच्छवियों को कि ये मेरा आखिरी यहाँ पे वर्षावास है, इसके बाद अब मैं अपने महापरिनिर्वाण की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। ये सुनते ही जो वैशाली में उनके जितने भी चाहने वाले थे वो बहुत ही दुखित हो जाते हैं, उनके पीछे पीछे वो चलने लगते हैं कि वो जहाँ तक बुद्ध जाएंगे हम वहीं तक उनके साथ रहेंगे। ऐसा चलते चलते वो जब वैशाली और कौशल के जो बॉर्डर होता है वहाँ तक पहुँचते हैं तो बुद्ध उनसे कहते हैं कि बस अब तुम लोग यहीं रुक जाओ, मेरे साथ आगे मत जाओ। और उस समय वो अपना जो बेगिंग बाउल है, जिसका सर जिक्र कर रहे थे कल भी, वो बेगिंग बाउल वहाँ लिच्छवियों को दे देते हैं कि तुम ये लेके जाओ, इसको मेरी स्मृति समझो, और उनको वहाँ से वापस कर देते हैं। और साथ ही कहते हैं कि बुद्ध ने वहाँ पे एक वाटर बॉडी एज अ बैरियर क्रिएट कर दिया था कि वो वाटर बॉडी क्रॉस करके लोग बुद्ध को ना आ सके। तो ये दो रेफरेंस हमको मिलता है वहाँ पे, और इसके आधार पर कनिंघम ये कहते हैं कि शायद इस इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए जब बुद्ध अपनी जो बेगिंग बॉल है वो लिच्छवियों को दे देते हैं और लोगों को वहाँ से वापस जाने को कहते हैं, तो ये कमेमोरेटिव स्तूप है, ये एक शारीरिक स्तूप नहीं है, ये उस इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए जो बुद्ध ने वहाँ पे लोगों को वापस जाने के लिए कहा था, ये है। तो इसके बाद एक और आपको, अगर आप लोगों ने जब अस्थि कलश में पढ़ा होगा, कल एक थोड़ा सा रेफरेंस भी उसमें था कि स्तूप कहाँ बनाया जाए, इसके ऊपर बुद्ध आनंद को बताते हैं कि स्तूप एक चक्रवर्ती राजा का जहाँ पे बनना चाहिए, दो मेन रास्ताएं जहाँ पे क्रॉस होती है, जो बड़ी बड़ी मेन रोड्स होती है, वो जहाँ पे क्रॉस होता है वहाँ पे एक स्तूप का निर्माण करना चाहिए। ये स्तूप एक चक्रवर्ती राजा को डिनोट करता है, इसीलिए मेरा भी जब मेरा देह अवसान हो तो मुझे मेरा भी स्तूप का निर्माण तुम ऐसे ही जगह पे करना। तो अगेन जो
केसरिया का आज का लोकेशन है, अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, तो केसरिया का जो आज का लोकेशन है ये 2 मेन रोड्स के क्रॉस पे मिलता है। एक आपका पटना से बेतिया जाता है, दूसरा आपका आरंभ से यहाँ आते रहे हैं। कामेश्वर बाबू बैठे हैं, मैं प्राचीन भारत की बात करूँगा तो झंझट हो जाएगी मेरे लिए, उनके सामने बात कर रहा हूँ। शुरू से आते रहे हैं। ये सिल्क रूट पूरा का पूरा भारतवर्ष होके गुजरता था। इस संपर्क के कारण धर्म लोगों से भी बातें लेता था, अपनी बातें भी देता था, और इस कारण इसका प्रसार भी हुआ। ये कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध की बात मैं नहीं करूंगा, पर संघर्ष, विचार में विरोध की बात होती रही है, पर इसने एडजस्टमेंट करना शुरू से ही सीखा है, एकोमोडेट करना शुरू से ही सीखा है। शक आए, कुशान आए, खून आए, और जाने कौन कौन आए, पता नहीं कहाँ है, सब मिले हुए। तो ये जो मिलते गए, एक होते गए, इंटीग्रेशन होता गया, ये भारतीय संस्कृति की बड़ी विशिष्टता है। और ये सिर्फ, जब मैं अभी सिर्फ धर्म की बात कर रहा हूँ कि संस्कृति की जो विशेषता मैं बोल रहा हूँ, वो भारतवर्ष के तत्कालीन धर्म की विशेषता भी है। अगर ये बात थी, तो फिर भारत में अनेकता क्या है? मैंने कहा कि विविधता में एकता है यहाँ, तो ये विविधता क्या थी? तो विविधता 3 रूपों पर हम जांचने की कोशिश करते हैं। एक तो लोग कैसे हैं भारत के, दूसरे भारत की भूमि कैसी है, और तीसरे भारत का क्या कहेंगे, वेदर, क्लाइमेट, जलवायु कैसी रही है। ये 3 चीजें प्रभावित करती रही हैं भारतीय संस्कृति को। तो लोगों के बारे में बात अगर करें तो मैं उनको विस्तार में उनके नहीं जाऊंगा, सिर्फ नाम लेता जाऊंगा। और समझिए एक तरह से ये मेरा जो अभी बोलना हो रहा है वो रनिंग कमेंट्री की तरह है, अपने में अलग से कोई बात नहीं है। 3 प्रमुख प्रजातियां भारतवर्ष में आज भी है, कहीं कहीं दिखाई पड़ जाएंगी। एक प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, नाम से जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया में जो आदिम जाति के लोग हुआ करते थे, उनकी जैसी कोई जाति यहाँ थी। वो लोग यहाँ रहते थे, वो नाटे होते थे, काले होते थे, नाक फैली होती थी, मुंह भी फैला होता था। ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड एक प्रकार की प्रजाति थी जो भारत में थी। दूसरी प्रजाति जो भारत में थी वो रही है, थी, जब मैं बोल रहा हूँ तो थी और खत्म हो गया ऐसा नहीं है, रही है पेलियो मेडिटेरेनियन अथवा द्रविडियंस। आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानते हैं कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि उसको द्रविडियंस ने बनाया। लोग और दूसरी बातें करते हैं, और बातें करते हैं, सारे सच हो सकते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि द्रविडियन ने उसका निर्माण किया। ये द्रविडियंस सामान्यतः मझोले कद के लोग होते हैं, एक्वेलाइन नोज होती है उनकी, सुग्गे की तरह की नाक। सुग्गे की तरह की नाक जब मैं कह रहा हूँ तो आपको स्मरण दिलाऊं कि जीसस क्राइस्ट की नाक सुग्गे की तरह होती। जीसस क्राइस्ट की नाक के बारे में जब रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि आप तो देवी देवताओं से बातें करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो क्या कभी जीसस क्राइस्ट को भी देखा है? उन्होंने कहा हाँ देखा तो है। तो पूछा कि कैसा है, कैसे हैं वो? तो उन्होंने कहा कि उनकी नाक एक्विलाइन है। आप ये जान लें कि रामकृष्ण परमहंस ने कोई किताब नहीं पढ़ नहीं सकते थे, चौथा पांचवा में तो समाधि में जाने लग गए। सारा ज्ञान उनका अपने अंदर में था। उस ज्ञान से उन्होंने देखा जीसस क्राइस्ट को। बाद में शोध करने वालों ने खोज किया तो पता चला कि हाँ ये बात तो सही है कि जीसस क्राइस्ट की नाम एक्विलाइन थी। तो भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा बनाने वालों में ये द्रविडियन है, पेलियो मेडिटेरेनियन है, जिसकी नाक सूखे की तरह थी, बाल काले थे, आंखें काली थी, और ये तप्त गौरवर्ण। आप द्रविड़ खाने से सीधे दक्षिण भारत में मत पहुंच जाइए। दक्षिण भारत में भी 2 तरह के लोग हैं। द्रविड़ में जो बेटर क्लास पीपुल हैं वो
तप्त गौर वर्ण के होते हैं। तप्त गौर वर्ण माने चांदी को अगर तपाया जाए तो जैसा हो जाएगा, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो ये फिर तीसरी जाति जो भारत में थी वो थी रही है, वो है आर्य, जिसको लेकर विवाद की बात हमेशा होती ही रही है, आगे भी होना चाहिए। और ये आर्य भी दो तरह के हैं, दो प्रजातियां हैं आर्यों की भारतवर्ष में, एल्पिनॉइड अथवा आर्मिनॉइड। एल्पिनॉइड अथवा आर्मिनॉइड, आर्मीनिया के इर्द गिर्द पाए जाने वाले लोग या आल्प्स पहाड़ के नजदीक पाए जाने वाले लोग जो भारतवर्ष में आए तो उनको आर्यों की शाखा मानी गई। और ये लोग भारोपीय भाषाएं बोला करते थे। भारोपीय भाषाएं मतलब लगभग सारे ही यूरोप की भाषा, लगभग सारे ही। एक और कैटेगरी ऐड हो जाएगी जो कि हेरिटेज कमीशन जिसकी देखभाल करेगा, और उसके बाद जो बची हुई चीज़ें हैं उसके लिए जो लोकल बॉडीज़ हैं उनका इंटरवीन करना, उनको सेंट पर लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक स्टेप ये कंजर्वेशन का भी और मैनेजमेंट का भी। दूसरी जो समस्या कंजर्वेशन से रिलेटेड होगी वो फिर नेचुरल है। यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं इंडिया की हर स्टेट की, वो अपने आप में कंजर्वेशन के लिए भयंकर समस्या उत्पन्न करती है। दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक टेम्परेचर एंड एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब हम लोग सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल एंड नॉर्थ टेम्परेट जोन से में पड़ता है। जो साउथ इंडिया है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, उसका ट्रॉपिकल जोन है तो इसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट करते हैं। उसके बाद नॉर्थ टेम्परेट क्लाइमेट या जोन। तो इन दोनों में ट्रॉपिकल में ज़्यादा है, थोड़ी टेम्परेचर कम है, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों की समस्या ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर राइज भी होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी होती है और टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन, ये अपने आप में फिर एक मुझे लगता है कि सबसे भयंकर समस्या क्रिएट करता है किसी भी मॉन्यूमेंट के कंजर्वेशन के लिए। तो अब बहुत बड़े मॉन्यूमेंट के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ तक संभव हो इन दो जो वेदरिंग एजेंट्स हैं इसके अगेंस्ट इसको इंसुलेट करना जरूरी होता है। तो ये हम लोग जो मूवेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए तो कर सकते हैं, लेकिन फिर जो इमूवेबल चीज़ें हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, नालंदा से साइट है, उनको तो फिर मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, जहाँ जो कम छोटे छोटे स्कल्पचर्स मिलते हैं या कहीं किसी जैसे म्यूजियम्स वगैरह हैं तो वहाँ ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये दूसरी समस्या मुझे लगता है कि वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तीसरा एक जो जनरल जो मुझे लगता है चर्चा का विषय होना चाहिए कि ये एक यहाँ जो डेवलपमेंटल प्रेशर्स हैं वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उनको थ्रेट देने का, रिस्क करने का। अब ये डेवलपमेंट, फिर भी डेवलपमेंट तो बहुत पॉजिटिव वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन डेवलपमेंट अगर प्लान्ड वे में नहीं हो तो फिर ये समस्याएं क्रिएट करता है। अगर हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ प्रोसीड करना चाहें तो सिर्फ पटना में भी अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कुम्हरार की समस्या। कुम्हरार में जब उत्खनन हुआ था, एक्सकवेशन हुआ था, जो पिलर्स दिखते थे तो वो आसपास के सराउंडिंग लेवल के ऑलमोस्ट बराबर था। लेकिन जब अर्बनाइजेशन हुआ और उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट वर्क्स हुए, उसके कारण आसपास के सारे जो एडजॉइनिंग लाइन्स हैं उनका लेवल ऊंचा चलता गया। बगल में जो मेन रोड जा रही है, जो ओल्ड बाईपास जिसे है, उसका भी इतनी बार उसे रिपेयर किया गया, धीरे 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 वो उसका लेवल काफ़ी राइज कर गया। और इसी तरह से आसपास की जो कॉलोनीज़ हैं वो उस कॉलोनीज़ का भी लेवल काफ़ी ऊंचा हो गया। सेकेंड, अब ये अपने आप में करता था, अगर आसपास की सारी जो लेवल सब ऊंचे हो जाएं और आपकी साइड नीचे इस पर आ जाए तो ऑब्वियस प्रॉब्लम्स होती है। जो वाटर लॉगिंग है, अंडर वाटर टेबल की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है। लेकिन इससे रिलेटेड एक और एस्पेक्ट होता है कि जब आसपास में रेजिडेंशियल कॉलेज बनने लगी तो वहाँ भी प्लानिंग का अभाव था। शायद या तो यहाँ जो म्यूनसिपल बॉडीज़ होंगे या BRDA जो भी होंगे
वो या तो उनके नियम उतने सख्त नहीं होंगे उस समय, मैं नहीं जानता आज से 40 साल पहले क्या बात थी, और अगर सख्त होंगे भी तो उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बुरा था। तो अब उन कॉलोनीज में प्लान्ड सैनिटेशन नहीं है, तो उसके कारण फिर जो डोमेस्टिक सीवर आता है वो भी पर्कुलेट करके उस ट्रेंच में आने लगा था। तो ये सब समस्याएं डेवलपमेंट से रिलेटेड, फिर पॉल्यूशन भी जो है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, ऑब्वियसली छोटे छोटे इंडस्ट्रीज भी वहाँ होते हैं, तो वैसे केसेस में पॉल्यूटिंग एजेंट्स एटमॉस्फेयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, और इस कारण फिर एक बड़ी समस्या क्रिएट होती है। एक और डेवलपमेंट का अगर उदाहरण देना चाहें तो राज्य का कैपिटल सिटी होते हुए भी यहाँ गरीब लोगों के रहने की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे पटना में अभी भी। अब उनका जो खाना बनाने का तरीका होता है वो या तो लकड़ी जलाते हैं या कोयला जलाते हैं, यही सब जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो फ्यूल सोर्सेज हैं उन्हीं का यूज़ करते हैं वो। ये फिर कॉमन परसेप्शन की बात है कि जैसे कोयला जलेगा तो कितना धुआं होता है। आप सुबह कभी किसी रोड पे जाइए तो अगल बगल जो टी स्टॉल्स होते हैं, नाश्ते की और चाय की दुकानें होती हैं, वहाँ अभी भी कोयले में घुमराते हैं, कितना धुआं वहाँ निकलता है सुबह भी और शाम में भी। तो ये मैं सिर्फ ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो डेवलपमेंट रिलेटेड प्रेशर्स हैं ये एक मेजर कॉन्स्टेंट्स हैं कंजर्वेशन को डील करने में एनवायरमेंट्स के। तो इसे एक प्लान्ड वे में इसको एड्रेस करने की जरूरत है। एक और जो अभी हाल में कुछ वर्षों से ज़्यादा प्रोमिनेंस में आ रहा है, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज जो क्रिएट करते हैं, स्पेशली बिहार के कंटेक्स्ट में हम देखें तो फ्लड। नॉर्थ बिहार में जिस तरह से हर साल फ्लड सिचुएशंस आती हैं तो वो अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि अगर उसके बीच में मॉन्यूमेंट्स भी समर्ज होते हैं थोड़ी दूर तक 2 फीट 3 फीट जितना भी हो, लेकिन वो अगर 1 साल 2 साल में नहीं भी नुकसान करेंगे तो उसे कमजोर तो कर ही होता है। लेकिन अब उसमें समस्या ये है कि ये कोई लोकल लेवल पर एड्रेस करने की चीज़ नहीं है। अगर जैसे हम अगर नॉर्थ बिहार के फ्लड्स की बात करें, इसके रूट्स नेपाल में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और प्लस वहाँ से जो डैम से जो एक्स्ट्रा वाटर अचानक छोड़ा जाता है, शायद वो उसका कारण है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ तो इजिप्ट से हम लोग ले सकते हैं। वहाँ पर भी सेम समस्या थी, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जो रिवर थी नाइल रिवर, उसमें कई डिस्ट्रीब्यूटरीज वहाँ से उन्होंने निकाले। वो डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल निकालने से फ़ायदा ये हुआ कि एक तो जो हमारे पास जो उपलब्ध जो उसका रिवर बेसिन है उसका वॉल्यूम कम हुआ, और जो साइड में जो डिस्ट्रीब्यूटरीज में जो पानी जाने लगा उस पानी को इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं, उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि ये तो नेचुरल डिजास्टर है। इन्होंने जितना हम लोगों का ज्ञान वर्धन किया अपने एक्सकवेशन के द्वारा, प्रेजेंटेशन के द्वारा, उससे ज़्यादा इन्होंने हम लोगों को मानसिक रूप से उद्वेलित कर दिया है। उद्वेलित इसलिए कर दिया है कि हम जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं और इनकी जो पुरातात्विक खोज है वो दोनों में आसानी से संबंध बनाना थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। अब जैसे हम फॉर सिंपल एग्जाम्पल हम मानते हैं कि 1500 ईस्वी पूर्व से हमारा ऋग्वेदिक काल आरंभ होता है और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद लेटर वैदिक पीरियड आरंभ होता है और आर्यों के साथ घोड़े का आगमन भारत में हुआ। लेटर वैदिक पीरियड में आर्य पंजाब से निकल करके गंगा जमुना द्वार वैली की ओर बढ़ रहे। अब ये सारे पॉइंट कंट्रोवर्शियल्स हैं,
आजकल बहुत से लोग ये नहीं मानते हैं कि आर्यनी घोड़ा भारत में लाए, वो थियरी ग्रेजुअली डिस्कार्डेड हो रही है। और जैसा मंजुल जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ सिनौली से जो रथ मिला है वो किसी अन्य जानवर के द्वारा नहीं बल्कि घोड़े के द्वारा जोता जाने वाला रथ। तो हमको फिर से सोचना होगा कि वो जो ट्रेडिशनल डेट है उसको हम माने या जो नए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे सामने आ रहे हैं उस कंटेक्स्ट में हम अपने पुराने विचार को मॉडिफाई करें। अर्ली हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है और मैं समझता हूँ कि नियर फ्यूचर में फर्दर एक्सकवेशंस के द्वारा इस पर अधिक महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ेगा और यह जो कंफ्यूजन है हम लोगों का अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के पहले का हिस्ट्री का वो दूर हो जाएगा। बाकी सिनौली एक्सकवेशन के संबंध में मेरे दिमाग में जो कुछ क्वेरीज आए थे वो मैंने डॉक्टर मंजुल से पूछा, जिसका जवाब भी उन्होंने दिया। मुझे लगता है कि ये हड़प्पन माइग्रेंट्स के द्वारा ये सेटलमेंट बसाया हुआ होगा, मेरी धारणा है। और चूँकि वहाँ की स्थिति दूसरी थी, काफ़ी समृद्ध स्थान था, आपने कहा भी युद्ध के सामान भी मिलते हैं, तो वहाँ पर कुछ प्रिमिटिव स्टेट की भी स्थापना अवश्य हुई होगी, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड से हम देखते हैं कि कबीलाई स्टेट के आधार पर के स्थान पर स्टेट फॉर्मेशंस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अनेक कबीलों को मिला करके बड़े बड़े राज्य स्थापना में लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे पूर्व पांचाल संभवतः आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन आपके व्याख्यान को सुनने के बाद यह अवधारणा मेरे मन में आ रही है कि हो सकता है कि कुछ लोग माइग्रेट करके वहाँ अपना नया स्टेट बना रहे हों और इसीलिए उनको युद्ध की आवश्यकता थी और रथ या युद्ध के सामान वो तैयार करते थे। दूसरी बात जो हमारे समझ में आई वो ये थे कि जिस टाइप का बरियल आप दिखला रहे हैं वो इंडिकेट करता है कि ये कॉमन पीपुल का बरियल नहीं था। It must have been burial of rich persons, elite class of the society. और वस्त्र का भी उल्लेख मिलता है कि जो रिचुअल्स हम लोग अभी फॉलो करते हैं, कॉफिन डेड बॉडी को वस्त्र में लपेट करके वो रखा जाता है, वो भी मिलती है जो ऋग वैदिक काल से मिलती है। तो ये बहुत से क्वेरीज हमारे पास हैं, बहुत से कंफ्यूजन है, बहुत क्लियर उसका जवाब हमें अभी भी नहीं मिल रहा है। जब तक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल और लिटरेरी मटेरियल को हम फुल्ली कॉरोबोरेट नहीं कर पाते हैं तब तक किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत कठिन है। लेकिन संभावना लगती है नए आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स के कंटेक्स्ट में कि हमें अपना ओल्ड जो फ्रेम लाइन हम बनाए हुए हैं अलेक्जेंडर के साथ हिस्टोरिक पीरियड, अलेक्जेंडर का डेट फिक्स है 326 में 26 BC में उसने इन्वेट किया, लेकिन उसके पहले क्या वो बात तो बहुत कंफ्यूज है। वैदिक पीरियड कब शुरू हुआ, लेटर वैदिक पीरियड कब शुरू हुआ, उनको इन प्रश्नों को आर्कियोलॉजिकल न्यू आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के मुताबिक फिक्स करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। आप पटना आए हम लोगों के अनुरोध पर,
आपने सभी लोगों को अपने व्याख्यान से काफ़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दिया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि फिर जब भी मौका मिलेगा पटना आने का अवसर नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर गौतमी भट्टाचार्य, सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट, पटना से, आपने कैसे